انہوں نے کہا ہے صرف ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب پلیز، ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو خلیفہ ہمارے ہیں نا وہ پوری جماعت کے خلیفہ ہیں نا، انہوں نے پوری جماعت کے جو لوگ اس وقت ٹک ٹاک پہ موجود ہیں ان کو مخاطب کیا ہے، انہوں نے کسی ایک فرد واحد کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ یہ ڈاکٹر کی نا ایک وہ ہے چھوٹا ذہن ہے اس بندے کا، یہ عقل سے پیدل ہے۔ اگر خلیفہ وقت نے فرمایا ہے نا تو اس میں نادر لوگ بھی آتے ہیں، اس میں یار سیفی نہیں، نام ہم نے نہیں لینا بات یار سنے صافی رہ بھائی، کے نہیں نہیں نام اس طرح نہیں لے رہا نہیں، کہ ہاں اس میں سارے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں اس میں بھائی کون پاک ہے؟ مسئلہ یہ ہے اس کہ میں وہ جتنے محمد ادھر بیٹھے حسین ہیں، علیم بھی آتا ہے۔ علیم صاحب کی میں ادھر گالیاں پروف کے چلو ساتھ دے علیم کا تو سکتا نام ہوں۔ لے دوں نا، بات نہیں سن نہیں لیں۔ نہیں، ہم جو بات جس ٹاپک پہ رہے ہم بہتر یہی ہے صافی ہاں بھائی، جی، ایک منٹ۔ تو یہ جو علیم بندہ کی ہے، ہم گالیاں دکھاتے ہیں کہ علیم ہاں نے ماں بہن کی گندی ننگی گالیاں دی ہیں، علیم کیا بات کرے گا؟ میں اب یہ کروں گا کہ آج کی جو انہوں نے لائیو لگائی ہے وہ، اور عامر نذیر کا وہ بیان جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ تصویریں ساری رات لگی رہنی چاہیے، یہ اور جو وہ سیکر کی لائیو جو لگتی ہے خلیفہ صاحب کے خلاف، حضرت جی مرزا صاحب کے خلاف، ان کی بالکل فیملی کے خلاف، وہ لے کر میں ابھی جاؤں گا ادھر مشن ہاؤس کینیڈا، ٹھیک ہے، میرے وہاں پہ بیٹھتے ہیں انکل، ٹھیک ہے، اور میں ان کو دوں گا، اور اس ڈاکٹر کی میرے پاس پکچر بھی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، ایک وہ کوئی بندہ کر رہا تھا انٹرویو، تو اور یہ ان اس کا میں بھی نام بھی آیا آپ کو پتا ہے نا، زکریا نام ہے نہیں ہے، زکریا۔ انہوں میں نے ڈفرینٹ نام رکھا ہوا ہے نا، اس نے کیا ویسے کرنا ان ہے کو پرائیویٹ ہو کے، میں خود جاؤں گا اس کے خلاف، کل ہی جاؤں گا میں۔ سر بات یہ ہے کہ صافی بھائی، بات یہ ہے کہ مکرم و محترم ڈاکٹر زکریا صاحب، جب آپ ہماری ذات پہ بات کریں گے، ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے، جب سے ہم ٹک ٹاک پہ ہیں، کسی بھی احمدی بھائی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم پہلے کوشش کرتے ہیں محترم پیارے بھائی کے علاوہ ہم نے کبھی بات نہیں کی، ہم کہتے ہیں کہ پرسنل میں حل ہو جائے نا۔ تو جب آپ ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے 8 بندوں کا ذکر کریں گے تو پیارے بھائی دیکھیں، آپ کی بھی ایک کھلی کتاب ہے، جب ہم وہ کتاب کھولیں گے تو ڈاکٹر صاحب سوچیں پھر کیا ہوگا۔ آپ وہی ڈاکٹر ہیں نا، وہی حافظ ہیں نا، جو آدھا حفظ کیا تھا، تو پھر آگے سمجھ جائیں میں کہاں سے بات کر رہا ہوں۔ تو پلیز نہ چھیڑیں ان ملنگوں کو، جو ملنگ آپ کو نہیں چھیڑتے، اور علیم صاحب آپ بھی غور کریں کہ یہ ملنگ جو ہیں آپ کو نہیں چھیڑتے، تو پلیز ان ملنگوں کو نہ چھیڑیں، ٹھیک ہے؟ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری ایک ایک ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، تمہاری ایک ایک گستاخی ہمارے پاس موجود ہے، اور ڈاکٹر آپ کی بھی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، اور میں کل جاؤں گا اور آج کی لائیو بھی لے کر جاؤں گا کہ یہ وہ عامر نذیر ہے، اور اس کا بیان بھی لے کر جاؤں گا جس میں اس نے تصویر نکلوائی ہے ایک شیخ سے، اور وہ ساری تصویر اس نے ٹک ٹاک پہ دی تھی، اور ساروں کو کہا تھا کہ اس کو لگاؤ، اور تم ان کو بلا کے مرزا صاحب کے خطاب کے اوپر تم پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہو، یہ دوستی نبھا رہے ہو اپنی، ہمیں ڈرامے دکھاتے ہو تم مطلب سر براڑ خلیفہ وقت کے خطبے کے اوپر ہو اور عامر نذیر کو ایک بندہ 2 دفعہ بلاک نیچے اتارے، پھر بلاک کرے اور اس کو کال کر کے جناب محترم بلاتے ہیں اپنی براڑ کے اوپر۔ بھائی عامر نذیر صاحب کا کیا کام تھا؟ سیکر چھورا صاحب کا کیا کام تھا اس براڑ پہ؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ منافق ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میں نے اوپر چڑھ کے خود کہا تھا کہ عامر نذیر سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ بات صحیح کرے گا، اس کا کیا کام ادھر، مجھے بھی نیچے اتار دیا، اور میں نے محمد ان صاحب کو کہا آپ پھر دوبارہ کیونکہ لیا۔ آپ اس گروپ کا حصہ رہ چکے ہیں، ایک سیکنڈ سوری سر، آپ کو ابھی جی پورا موقع دیتے ہیں۔ اس گروپ کا آپ بھی حصہ رہ چکے ہیں، بلکہ نیچے ایک خاتون ہیں وہ بھی اس گروپ کا حصہ ہیں، بلکہ میں بھی اس گروپ کا حصہ رہ چکا ہوں۔ یار تم بات کرو گے بے شرم انسان، تم اس گروپ میں صبح سے شام تک وہ ساری ریکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے لکھا پیارے احمد جٹ بھائی، میں آپ کو کہتا ہوں پیارے علیم بھائی، آپ لوگوں کو بتاؤ گے کہ آپ کی خلیفہ وقت کے ساتھ محبت ہے، آپ وہی ہو نا۔ یہ گمن صاحب بھی اس گروپ میں ہیں، اور نیچے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی اس گروپ میں ہیں، اور خاکسار خود بھی اس گروپ سے اس لیے کک کیا گیا کیونکہ ان کی منجی ٹھوکتا تھا، کیونکہ احمد جٹ کی برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو پیارے بھائی وہ ساری چیزیں، وہ سارے ریکارڈ ہمارے پاس ہیں، تو ہم نے ننگا کیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس لیے نہ چھیڑیں ہمیں۔ بار بار آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی، ڈاکٹر صاحب کو پرسنل میں بھی ریکویسٹ کی ہے، ان کو یہ میسج بھی کیے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو میسج کیے ہیں
کہ ڈاکٹر صاحب پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایسا نہ کریں، پلیز نہ کریں، کیونکہ میں کسی کو نہیں کہتا تو آپ بھی نہ کریں۔ ਘੁੰਮਣ ਸਾਨੂੰ موقع دو، کافی دیر تو بیٹھے نہیں جی یار۔ جی جی کومن صاحب کرو گل۔ جی میں وہی کہنا تھا کہ پھر دوبارہ مجھے اوپر لیا تو میں نے تعلیم کو ڈائریکٹ کہا تھا، میں نے کہا لیما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا تم خود یہ ساری باتوں کے اوپر ایک غلط بندے کو لینا چاہتے ہو، پھر مجھے جلدی اس نے نیچے اتار دیا۔ مطلب یہ بہت ہی غلط قسم کا، لوگوں دوسروں کو اوپر لینے کا مطلب کوئی نہیں تھا، مطلب یہ جان بوجھ کے سب کچھ کیا گیا ہے، یہی ان کی پرابلم ہے۔ یہ شروع میں آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہم گروپوں میں ہیں تو سب کو شاید نہیں پتا، اس کے میں وہاں بھی یہی مسئلہ بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ لڑائی رہتی تھی، یہ باز نہیں آتا تھا، تو میں اس کو اور جاٹ صاحب اس کو روکتے تھے، تو یہ اس نے اس کو بس وہ کسی وجہ سے ہم نے رکھا تھا کہ شاید ٹھیک ہو جائے، پر یہ ٹھیک ہونے والی قوم نہیں ہے، یہ اندر محمد صاحب یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے میں جناب اطاعت کرتا ہوں، میں خلیفۃ المسیح الخامی سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز؟ کمن صاحب آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں نا، اور جو نیچے خاتون بیٹھی ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، تو ساری ریکارڈنگیں تمہارے پاس موجود ہیں، تو خدا را میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے سے پنگا نہ لیں، میرا نام خاص طور پہ۔ احمد جان صاحب تیسری بار لکھا ہے مون بھائی نے، ذرا مون بھائی کو موقع دے دیں۔ جی موقع دیتا بھائی جان دیتا، ہن مینوں ڈر لگن ڈیا میں براڈ بند کرنی ہے۔ اچھا نہیں مون بھائی کو سن لو۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ان کی بھی براڈ کافی سنی تھی اور آپ کی بھی سنی ہے، میں 2-3 باتیں جو ہے وہ، ایک تو وہ خطبے کے حوالے سے میرے خیال ہے 2-3 پوائنٹ جو مجھے سمجھ آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی بد کلامی نہیں کرنی، کسی کو گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو جو صاحب علم لوگ ہیں ان سے جواب لے کے دیں، خود جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ بھیڑنے نہ لگ جائیں جواب دینے کے لیے۔ تیسرا یہ ہے کہ بجائے ہم یہاں سوشل میڈیا پہ جوابات دینے کے، خدا تعالیٰ کے حضور جو ہے نا وہ سجدہ ریز ہوں اور دعائیں کریں، اس سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو بات مجھے یہ سمجھ نہیں آئی جو، اور کہ وہاں پہ وہ یہ بات ساروں نے پہلے بھی کر دی ہے کہ خلیفہ وقت ہیں وہ جماعت احمدیہ کے، تو ان کے کیے ہوئے ان کے دیے ہوئے خطبے پہ یا ان کی کہی ہوئی بات پہ کسی غیر احمدی سے تبصرہ لینے کی کون سی ایسی ضرورت تھی کہ جی اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کا کام نہیں آگے چل سکتا تھا؟ سبحان، اور وہ بھی سخت ترین بد زبان ترین مخالف۔ جی بالکل۔ ان کو براڈ پہ دوسری ایک بات یہ جو آپ اس پہ تبصرہ کریں، آپ اس پہ تبصرہ کریں، جو میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں آپ میں سے کوئی متفق ہو اس بات سے یا نہیں، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ انہوں نے نا ایک ذکر بھی کیا تھا کہ میں نے 5 مہینے براڈ نہیں لگائی اور اب میں نے یہ براڈ لگائی ہے، اور اب مجھے آج کی براڈ کی ان باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ نا آگے مسلسل براڈ لگانے کا راستہ ہموار کرنے کی ایک کوشش تھی، جو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کی اس براڈ لگانے سے اس میں جو ہے نا وہ اس کھیت میں اب آپ نے ہل چلا دیا، وہ ہموار نہیں رہی، شاید اب وہ ہم تو چاہتے ہیں دوبارہ چلانا پڑے گا۔ مون بھائی بات یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بندے کو اس ٹک ٹاک کے اوپر ننگا کیا جائے، صحیح ہے؟ دیکھیں جو میرا ہے، جو مجھے ننگا کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے، احمد جٹ صاحب میں اجازت دوں گا۔ احمد جٹ صاحب نہیں، مجھے اجازت دے دیں۔ دیکھیں مون بھائی، پچھلی دفعہ 3 براڈیں لگی تھیں اور اسپیشلی وہ میرے پہ تھیں، مجھے اس نے گستاخ ثابت کیا اسی بندے نے، اور اس کے ساتھ طاہر امجد بیٹھا رہا۔ اس دفعہ ڈاکٹر لائیو بیٹھا رہا ہے، وہ استعمال ہوتا رہا، استعمال اس بندے کی وجہ سے۔ پچھلی دفعہ اس نے براڈ لگائی، اس کے مقابلے پہ جب میں نے براڈ لگانے کی کوشش کی نا تو مجھے احمدی آ گئے، انہوں نے کہا کہ فوراً براڈ بند کرو۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا، جب تیسرا آیا تو آئی کوڈنٹ ریزسٹ، تو میں نے براڈ بند کر دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب اس نے ایک دوبارہ شروع کیا ہے، اب اس بندے نے، اور اب اس کے ساتھ ہے ڈاکٹر زکریہ جو ایک جعلی ڈاکٹر ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، اپنے آپ کو شو ایسے کرتا ہے، مجھے MBBS بھی پتا ہے، اور میں نے پتہ نہیں کون سی
डिग्रीज ली हुई हैं। जाली डॉक्टर MBBS भी नहीं है, ये वो होम्योपैथिक डॉक्टर जो गली महल्ले का एक किताब सर पढ़ते हैं। छोड़ दें ये हाँ बात चलें को। चलें आगे ठीक करें, है। आगे करें आगे करें वो जी, अब अपने आप को डॉक्टर लिख के तो पता नहीं कौन सा रोब डालता है, जी वो बंदा बैठा हुआ है इसके साथ। और अब इन्होंने आज एक नया सीजन शुरू किया है ब्रॉड्स का। अब ये अहमद जट साहब भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, कालू साहब भी इधर है, इरफान जट साहब भी इधर हैं, और सैफी साहब भी इधर हैं, और अली अकबर साहब भी इधर हैं, जो भी हमारे साथ दोस्त हैं हम सब इधर हैं। अब ये ब्रॉड्स लगाएं, अब हम इनके मुकाबले पे ब्रॉड्स लगाएंगे। गाली तो हुजूर ने वैसे ही मना कर दी है, वो तो हमने देनी कोई नहीं। अब वही निकलेगा जो इनसे निकलेगा, उससे ज्यादा हम निकालेंगे, और हमारा इनसे वादा है। डॉक्टर जकरिया साहब नीचे सुन रहे हैं, और अलीम साहब की एक जोजा भी सुन रही हैं, जो शायद उनके निकाह में तो नहीं है लेकिन है उनकी जोजा, वो भी नीचे सुन रही हैं। मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूंगा। हुजूर का आज आ गया हुक्म, हुजूर का हुक्म हमारे सर आंखों पे, बिल्कुल सर आंखों पे। उसके बाद अगर आप हमारे मुंह से कोई बात सुने, कभी भी नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं, हुजूर का हुक्म आ गया, बात ही खत्म होगी। बिल्कुल। मैं एक और छोटी सी बात एक ऐड करना चाह रहा था, अगर आप मुझे इजाजत दे दें। मैंने कुछ इनके जो टिकटॉक के अकाउंट पे मैंने इनकी में कुछ वीडियोस देखी हैं। एक इन्होंने हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किसी किताब का एक हवाला लगाया हुआ था, जिसमें उन्होंने वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, स्पैरो और कुछ इस तरह करके ना, कि मुझे 2 फरिश्ते दिखाए गए हैं या 2 नबी थे। अब वहाँ पे जो लफ्ज़ लिखे हुए थे वो सिर्फ इंग्लिश में स्पैरो लिखे हुए थे, लेकिन इन्होंने जो पढ़ा और जिस तरह तंजन वो बात की, वो मुझे मेरे जहन में बैठ गई कि हजरत स्पैरो अलैहिस्सलाम। अब जो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई नहीं है उसको अपनी तरफ से ऐड करके, यानी हजरत खलीफतुल मसीह सानी की तहरीर पे तंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उन्होंने जो है वो स्पैरो को भी रसूल बना दिया, अलैहिस्सलाम बना दिया, और ये इस तरह कर दिया। तो सेकंड दीजिएगा इसके बाद। जी जी जी। तो यानी कि आप अब हम ही यहाँ पे जो वो मिसाल देते हैं कि टिकटॉक पे जो लोग बैठे हैं वो रोटी जो है वो कानों में नहीं डालते, वो मुंह से ही खाते हैं, उनको ये सारी बातें समझ आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ये इतने से इशारे काफ़ी हैं कि वो सियाना कां जो है ना, वो फिर हमेशा जहाँ गिरता है वो मिसाल सारों को पता ही है। मोहन भाई एक सेकंड मोहन भाई की एक बात का जवाब देने दें, उसके बाद जरूर मिशन भाई आप बात करेंगे जिसने भी करनी है। मोहन भाई आपने सिर्फ खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह अन्हो का एक हवाला दिया है। मैं जब वक्त आया इंशाल्लाह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इल्हामात के ऊपर ये खबीस बंदा और साथ 3-4 और खबीस बंदे इतराजात करते थे। अपना गुम्मन राशिद साहिब और नीचे खतून बैठी हैं, उनको अच्छी तरह पता है, ठीक है। और कौन कौन लोग थे इस ग्रुप में और मुझे क्यों किक करवाया गया, वो सारा जो है पर्दा फाश जरूर करूंगा इंशाल्लाह वक्त आने पे ना। मिशन साहब एक चीज मैं सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो मेरी राय है, ये दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो आप 2 पर्सनैलिटीज का जिक्र कर रहे हैं। मेरा बड़ा एक ठीक है, डॉक्टर साहब ने ये गलती तो की है नामजद करके, बहुत ठीक है, उन्होंने गलती कर दी, लेकिन मैंने कभी डॉक्टर साहब के मुंह से कोई भी जमात के ये वाली चीज नहीं देखी। मैं बताता वो जमात की बात मैं बताता हूँ सर, सुन ले मेरे से। हाँ, अगर मेरे इल्म में नहीं है, मैं जो दूसरे हजरत हैं क्या है मैं बताता हूँ। डॉक्टर साहब वो हैं कि जब अलीम का और इमरान कालू का मामला होता है तो इमरान कालू को कहा जाता है इमरान कालू उत्ते चढ़ के गालां दे, कोई मसला नहीं। मेरी बात सुन ले, मैं आप समझ गया आपकी बात। सुन ले, एक बात और है फिर आप करें भाई। क्या ये जो बात आज हुजूर अनवर रय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अजीज ने किया, क्या इससे पहले हमने ये बातें नहीं सुनी थी? आज ही हमें ये बात क्यों याद आई है? दूसरी बात, नादर साहेब जिनके साथ पिछले दिनों मैंने भी ब्राड़ लगाई थी उनके खिलाफ, नादर साहेब के साथ इनके क्या मामला थे? क्यों कि नादर साहब के साथ ये मुकाबला नहीं कर सकते थे, और मुझे आज धमकी सीधी धमकी लगाई है। और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई। देखिए, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुआ था, मैं पहले छोड़ चुका था, उसमें अलीम साहब अमेरिका के जर्मनी के एक डॉक्टर साहब को लेकर आए, एक साहब को जिन्होंने एक ख्वाब बयान किया था, ठीक है। उन्होंने बाकायदा वहां पर एक मिशन चला के, यानी हर वो नुक्ता ढूंढते हैं जिसमें कि आखिर में जाके जमात के एंडिंग पॉइंट खराब निकले। ठीक है ना, वो मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, लेकिन जो हमारे दूसरे डॉक्टर जकरिया साहब हैं वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते। एक मौका दे दीजिए प्लीज,
वो उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज मैंने नहीं सुनी। सर हम तो रवा से जानते हैं डॉक्टर साहब को, ठीक है, तो हमें डॉक्टर साहब का नाम बताएं। तो ना हम मैंने नहीं सुना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप भाई मेरी एक बात सुन लो यार प्लीज यार, अल्लाह का वास्ता है यार। 2 दिन पहले अलीम एक ग्रुप के साथ अटैच होके उन्होंने लाइव लगाई जिसमें सिर्फ ये साबित करते रहे वो लोग कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने नबी ना होने का दावा किया है। 37 हवाला पढ़े बगैर सियाको सबाक के, और अलीम उस लाइव को कंट्रोल कर रहा था, और वो बंदा हवाले पढ़ता गया। आज सुबह कमालात इस्लाम से इसी मौजू पे बहस कर रहे थे, अच्छा, और वही हवाले आज सुबह दे रहे थे। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर ज़करिया जो है उसका अगर आपने किसी से पूछना है तो मैं आपको एक बंदे का नंबर दूंगा। नहीं। अच्छा मैं बात सुन लेना, वैसे मैं थोड़ी सी, वो आपको बता देगा कि कितने पानी में है ये बंदा। बस हम भी जो बंदा शोएब राजा को उठा के अपनी बात करता है, मेरा ख्याल वो बेवकूफ है। जो मुझे एक छोटी सी बात कर लेने दें। मैं उसकी बात भी नहीं करता, आमर नज़ीर की भी, मैं उसको करके इन सब का जो ऊपर वाला बंदा है ना वो है शोएब राजा, जो शोएब राजा को ऊपर बिठा के हमारा खुतबा सुना रहा है। उस बंदे की या तो अकल पे मातम है, या उसके, मेरा ख्याल है कि उसको गाली तो हम दे नहीं सकते, आगे मैं क्या कहूँ, गाली नहीं हम दे सकते, वो हमें मना है, लेकिन उस बंदे की अकल पे मातम। मिशन साहब आप ये देखें कि सुबह सुबह यूरोप के टाइम के मुताबिक ब्रॉड्स लगती हैं, अब वो डॉक्टर साहब लगाएं या कोई और लगाए, और उसमें फोन करके इन्हीं गैर अहमदियों को, जो ये आमर नज़ीर और दूसरे लोग हैं, इनको फोन करके बुलाया जाता है कि आओ भाई हमने ब्रॉड लगा लिया, आ जाओ, ये चलनी नहीं है आप लोगों के बगैर। अच्छा यार, एक गुस्ताख और बदतमीज आदमी है शोएब राजा, कभी बात नहीं करने देता, हंसता है, ठट्ठे करता है। ये रोजाना हुसैन ईसा की ब्रॉड में बैठ के इसने नाचना बंद किया था, इस बंदे को ऊपर उठा के आप करते हैं ऐसे। एक मिनट, हैरत होती है। एक मिनट राना भाई, जज साहब वो बताए ना वो वाकया जब इसने अलीम ने लाइव लगाई थी, और वो SK चौधरी को लेके, आमर नज़ीर को लेके, ये इसने टॉपिक वो छिड़ा हुआ था कि जो हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब हैं, उन्होंने जो दावा एक दफ़ा उन्होंने ऐलान किया था कि इतनी बाइट हुई हैं, वो एक झूठा दावा था। साफी भाई देखें, वो बातें तब होंगी जब अगला भी कोई, हमने इनका जवाब देना है कि नहीं देना। बहुत सारी बातें हैं प्यारे भाई, ऐसे नहीं हम बैठे, आप सारे मेरे साथ हैं, तो वो जब वक्त आएगा वो सब हम दिखाएंगे लोगों को। खलीफा तुम इसी सानी के ऊपर एक इतराज, मैं तो जमसी मौत के कई वीडियोस चलाऊंगा इधर। ये करता है, मुझे खलीफा वक्त से मोहब्बत है। जज साहब एक और बात लास्ट बात है मेरी लास्ट बात है, फिर मैंने बिजी हो जाना है यार प्लीज। इसने एक वीडियो बनाई है इसने जज साहब, उसमें ये कहता है कि श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया में जो अहमदी बैठे हैं उधर से तो बच के आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ के जलील हो रहे हैं और उनकी जिंदगी बहुत तंग है, फर्शों पे लेट रहे हैं, बिजली कोई नहीं, पानी कोई नहीं, और बहुत ज्यादा जलालत हो रही है, और ये जमात को सोचना चाहिए इनके बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर जिसका भी कोई रिश्तेदार है कहीं बैठा हुआ है, कितनी सपोर्ट करते हैं अहमदी उनको जो बाहर के मुल्कों में है, और ये क्यों बदनाम कर रहा है इस तरह की वीडियोस बना के? कौन पूछेगा इससे? डॉक्टर नीचे बैठा है, इसको बुलाओ ना, डॉक्टर को ऊपर बुलाओ ना। डॉक्टर ने नहीं आना यार, डॉक्टर सिर्फ पर्सनल च धमकी ला सकता है। डॉक्टर इत्थे आएगा, डॉक्टर ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ पर्सनल च बैठ के धमकी लाना। एक मिनट यार, सारे म्यूट लाओ, हादिया साहब आए ने। जी जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यही बात जो आज हुजूर ने कही है, ये मैं आपको कई दफा नीचे आके लिख गई हूँ, तो आप मुझे कहते थे आप यहाँ से चली जाएं। कोई बात नहीं, इंसान गलती करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। बात करनी थी मुनाफिकों की, जहाँ तक मुनाफिकों का तल्लक है ना, इंशाल्लाह खुद ब खुद कैफरे किरदार को पहुंच रहे हैं, नाम भी दे देना, चले जाएंगे। हादिया बाजी नाम भी ले दें, रहने दे चले जाएंगे। आप देखिए, वो कह रही हैं कि मैं औरत लिखती रही हूँ तो उनका नाम लेना है, ऐसे तो ना करें बाजी प्लीज। वो जो औरत, वो मैं नादर को भी मना कर देती हूँ, जब वो सख्ती से बोलता है ना, जी तो मैं उसको अच्छा यार, ये अगली बात करने दें, छोड़ दें इस बात को। सब रिस्पेक्ट करते हैं इस बात की, इस बात पे मुझे मान है अपने भाइयों पे, तो वो मेरी बात की रिस्पेक्ट करते हैं।
चाहे मुझे कहें बाजी आप चली जाएं यहाँ से, लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं उनकी सबकी मशकूर हूँ, आप सबकी जी उस रिस्पेक्ट के बदले। जो बात मैं कहने के लिए आई हूँ ना, वो कह रही हूँ कि जिस ग्रुप का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उस ग्रुप में से पहले आप गए, फिर राशिद गुम्मन भाई जो हैं इनको निकाल दिया गया, फिर मुझे निकालने का पुरजोर मुतालबा हुआ और बड़े जोर शोर से हुआ और कहा गया कि हम तोड़ देंगे ग्रुप, और फिर मुझे ना निकाला गया जब मेरे साथ 5, 6, 7 भाइयों ने स्टैंड ले लिया कि वो तो ठीक बात करती है, गलत बात तो करती ही नहीं है, तो क्यों निकालें उसको हम, क्योंकि वो आपको आपकी मुनाफकत से रोकती है। तो वो लोग खुद ही सारे दफा हो गए और जाके अलग ग्रुप बना लिए। जी वो तो हो गया साफ ग्रुप। जी अब साफ तो हो वहाँ गया? हाँ बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। उसमें अमेरिकन और कैनेडियन लोग चले गए हैं? हाँ वो दफा हो गए, दो सारे ग्रुप खुद ही चले गए, अच्छा, इस बार खुद चले गए हैं। ओ खैर वो मेरी वजह से गए हैं कि ये औरत हमें रोकती है, तो इस जलील औरत के साथ नहीं, हम नहीं चल सकते। शॉर्टली थोड़ा हादिया साहिबा थोड़ा अब सा आगे चले, बताएं कि बात क्या जो ये मुनाफिकीन की बंदा अगली बात मैं करने जा रही थी वो सुन लें। जी जी वो ये है कि एक औरत बराड़ लगाती थी तो वो अपने अंजाम को पहुंच गई है, तो इसी तरह जो 2-4 बाकी रह गए हैं वो भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। आप इन लोगों को मशहूर मत करें, इन लोगों के पर बराड़ लगा के अपना टाइम मत जाया करें, इन लोगों को अहमियत मत दिलवाएं टिकटॉक पर। हाँ जी, ये बात इनको एक गिरा छोटी सी बात है, दें, इनको हादिया साहब, मेरी एक बात- मुश्ते खाक समझकर गिरा काम की दें। बात की है। एक सेकंड हादिया साहिबा, आप ये बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं उस ग्रुप का हिस्सा रह चुका हूँ, ये बताएं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ऊपर ये अलीम और बाकियों का नाम रहने देते हैं हम, क्या सारा दिन सुबह 8 बजे जनाब वो ग्रुप लगता था और रात के 12 बजे, ये मैं यूरोपियन टाइम बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा सारी रात दिन, चलता रहा है। पूरा दिन पूरा रात जो है, जैसे जैसे लोग फ्री होते थे उस ग्रुप के अंदर आ जाते थे, तो इतराज पे इतराज। आज किस मुंह से अलीम तुम जो हो उधर बैठ के तुम कहते हो यही वही खलीफातुल मसीह खामिस है ना जिनके ऊपर तुम इतराज करते थे, वही अज़म मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम है जिनके इल्हामात पे तुम इतराज करते थे। हम वही लोग हैं जो आपकी मुनाफकत की वजह से हम आपको उधर डंडा देते थे और आपने हमें उठा के बाहर फेंका। चलें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, देखें, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ खास तौर पे डॉक्टर साहब को और अलीम साहब को कि देखें, हमारे नाम ना लेके आए, आपने जो करना है करें। जब मेरी जात के ऊपर आप बात करेंगे फिर नहीं अलीम छोड़ूंगा। ने आज सुबह भी बेचारे कमालात सलाम साहब को बहुत ख्वार किया एक ब्रॉड के ऊपर ना, हवाले पढ़ के गलत, और उनको कहता ये पढ़ो। मिर्जा साहब के ऊपर उसने बड़ी तौहीन की अलीम ने आज सुबह भी। इनकी ना वहाँ मेरे साथ जो झड़पें हुई है ना उस ग्रुप के अंदर, उनके ऊपर बकायदा मैंने शायरी की। पता है मुझे, मैंने तो आपको सारा सुना है। बात यह है कि सच सुन नहीं सकते। जब आप उनके सामने हकीकत रखें ना, तो वो दो ही तरीके हैं, या आपको खामोश करवाया जाता है या आपको किक कर दिया जाता है, ठीक है ना। नहीं तो वो हम नहीं होते ना, अब हम खामोश होते हैं ना, अब हम किक होते हैं। हमें हमने तो खैर वापस कर वो दिया बंदे गया। शामिल किए हैं ना, आप नहीं आए वापस, लेकिन जज हमने साहब और बहुत सारे मेरी वो बहन, बंदे वापस शामिल हम किए हैं तो- जो उनकी वजह से किक हुए थे। जज साहब और मेरी बहन, हम तो जज्बाती लोग हैं, हमारा तो खून ऐसा है, हम तो आ जाते हैं गुस्से में जब कोई मिर्ज़ा साहब पे अटैक करता है, उनकी फैमिली पे या खलीफों पे, हमारे खलीफा वक्त की फैमिली के ऊपर, हमें तो गुस्सा आ जाता है, हम तो गुस्से में चले जाते हैं, मरने मारने पे भी चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो जवाब दे दूंगा कि मैं तो आपकी मोहब्बत में ये किया है मैंने, मेरे से गलती हो गई, और मैं जब हुजूर आपके मैंने ये अल्फाज सुने हैं उसके बाद मैंने तौबा कर ली इस काम से, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्या जवाब देंगे कि आपने लाइव लगाई है और इनके पास भी जवाब बिठाया है। हुआ है ऊपर, इनके पास जवाब है, टिकर को बिठाया हुआ ऊपर, हाँ जी। आमर हक को बिठाया हुआ है ऊपर, इनके आप पास क्या जवाब है। देंगे? मैं बता देता हूँ क्या जवाब है। ये अगर इनसे अल्लाह मियाँ पूछेगा ना भाई आपने क्या किया, ये मैंने 100 बंदा ब्रॉड पे बिठाया, कैसे
मैंने कॉल की थी, अमन नजीर को मैंने कॉल की थी, सीकर को मैंने 100 बंदा बिठाया। भाई हमने तो किसी RMD को नहीं लिया ऊपर। आहो, ये देखो ना 97 बैठे हैं इस वक्त, 98 बल्कि 100 से ऊपर थे थोड़ी देर पहले। हाँ, हमें साबित करें कि हमने किसी को कॉल नहीं ना की, किसी को कॉल नहीं ना की, खुद चले आए हैं ना। हादिया बहन, मैंने आज रिकॉर्डिंग की है। आज ये डॉक्टर जोन्स है ना, जाली डॉक्टर, होम्योपैथिक इलाज बिल मिसल, अपने आप को MBBS कहता है। 80 मुबशर साहब पढ़ के मर गए फार्मेसी ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਮਿਸਲ पढ़ के अपने आप करना। मैं समझती हूँ कि ये जो ब्राड इस वक्त चल रही है ना उनके ऊपर, ये भी हम उनको फेम दे रहे हैं, उनके घटियापन का ये अंदाजा है मुझे। बाजी हादिया वो इससे भी खुश हो रहे हैं कि एक लास्ट कमेंट करना चाहता हूँ। नहीं वो खुश नहीं हो रहे साफी भाई, एक सेकंड, वो खुश नहीं हो रहे, वो तो मिन्नतें कर रहे हैं कि ब्राड बंद कर दो, खुदारा ब्राड बंद कर दो। ये आपके सामने है प्रूफ, ये सामने। इसके अलावा दूसरे नंबर के ऊपर जिन्होंने कॉलें की हैं, क्योंकि वो ना नंबर है मैंने सेव नहीं किए हुए ना, वो इसलिए नहीं मैं लगा रहा कि यार किसी के ऐसे नंबर पर्सनल हैं तो मैं लोगों को ना दिखाऊं ना। ये अलीम साहब का मैसेज आया, ठीक है, नहीं आए, बस वो उसी के ऊपर हम बात करते हैं, उसी के ऊपर आप भी बात करें। देखें ये जो दोरा म्यार है ना, मैं तो खैर नहीं करता, ठीक है। आपको अच्छा, मैं आप तक अपनी बात पूरी जो नज़म मैंने लिखी थी ना, इनकी बातें सुन के वो हैं 7 शेर। अगर आप कहें तो मैं वो आपको सुनाना चाहूँ। सैफी साहब के पहले सुन ले, उन्होंने जाना है, सैफी साहब ने जाना, उनकी सुन ले पहले बात। जी डॉक्टर साहब आप मुझे नहीं जानते, मैं तो जाऊंगा उनके पास, मैं कहूँगा ये देखो मेरा ताया जो है ये शहीद हुआ था, इसको जमात की वजह से कत्ल कर दिया गया, अच्छा खासा जिम्मेदार बंदा था, कत्ल हो गया। हमने वो जो भी बाद में जो भी हुआ एक अलहदा स्टोरी है। फिर मैं उनको दिखाऊंगा अखबार कि 2 साल मैंने जमात की वजह से केस भुगता है, कितना अर्सा मैं जेल में रहा जमात की वजह से, अच्छा खासा फैमिली का बंदा था मैं, सिर्फ जमात के साथ अटैच होने की वजह से मैंने वो सजाएं भुगती हैं। और अखबार के टोटे दिखाऊंगा मैं उनको जिनमें मेरा नाम आता था। डॉक्टर साहब आप क्या जवाब देंगे? सैफी साहब देखें, ये डॉक्टर साहब की बड़ी मतलब इधर जर्मनी में बड़ा नाम है, इतना नाम है कि जो बैतसबू है ना उसके अंदर इसको जाने देते, इतना नाम है इनका, ठीक है, इतना नाम है कि लोग जो है ना वो कहते हैं कौन आ गया रे, कौन आ गया रे, इतना नाम है भाई जी, भाई का इतना नाम है, बड़ा नाम है, इतना नाम है, मैं बता नहीं सकता लोगों को। डॉक्टर साहब का इतना नाम था कि आधा कुरान करीम इन्होंने हिफ्ज किया था, इतना नाम था डॉक्टर साहब आपका। बस यार बस मैं समझ सकता हूँ अली अकबर भाई, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं ये, मैं समझ सकता हूँ आपके हम जज्बात। तो उस वक्त जब जमात के साथ अटैच हुए ना डॉक्टर साहब, तो ये अपने सीने पे जिगर पे हुए थे, कोई फायदा नहीं लिया जमात से आज तक। अगर कनाडा में बैठे हैं ना, सैफी भाई ठहर जाएं। लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने मेरी जो धमकी क्यों लगाई है ना, वो थोड़ा सा मैं लोगों को बताना चाहता हूं। डॉक्टर साहब एक ब्राड पे थे, MG भाई की ब्राड लगा करती थी, 1 घंटा किसी बात के ऊपर गुफ्तगू होती है तो खाकसार ऊपर जाता है, तो खाकसार बोलने लगता है अभी, तो डॉक्टर साहब आगे से मुझे पढ़ जाते हैं, ठीक है। सॉरी जी, मैंने ये पढ़ जाने वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है, इस चीज पे मैं माजरत चाहता हूँ। यार 1 सेकंड में देना, आधा मिनट देना। मैं हैरान हाँ कि गल्लां सिकेड़ियां कर रहा, राजा जवेद थले बैठ के की कर रहा है, मजे ले रहे हैं। अबू बकर मीरी बैठा वो थले और सिर खुड़क ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਨਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ 1 ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। और बुग़ज़ इस सूरत चो आज बाहर आंदा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़करिया साहब, डॉक्टर आगे आप समझते हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, तो वो बुग़ज़ दिल से निकालें, आपके लिए अच्छा है। मुझे तो कोई डर नहीं है प्यारे भाई, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर
मेरी गलती की सजा मेरा खलीफा वक्त देता है, खुदा की कसम मैं उनको जो है उस चीज की, खुदा से उन्होंने आज कहा है कि खुदा से माफी मांगे। देखें हमारे खलीफा वक्त की बड़ी खूबसूरती है उस मैसेज के अंदर जो आज खुतबा दिया उन्होंने। देखें खुदा से तो हम माफी मांग रहे हैं कि जो भी हम तो मान रहे हैं भाई हमने गलती की है, कम से कम आप जैसे जो हैं मुनाफिक हम नहीं हैं कम से कम, क्योंकि आप खुद गालियां देते हैं और दूसरों को कहते हैं कि ये देते हैं, हम तो देते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने तो इस- देखे, एक मिनट अहमद जट साहब, इधर बात करनी बहुत जरूरी है। इनको कहा गया कालू साहब की तरफ से, कालू साहब ने उस फैसले में कहा कि अलीम साहब ये हरकत कर रहे हैं, प्लीज उनको मना करें। इन्होंने कहा मैं खुद संभाल लूंगा, कह लो तुम फिक्र ना करो। इनकी अपनी जुबान जैसी है, कह लो तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन ना लो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਕਾਲੂ ਨੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਲਫ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਤੇ ਜੱਟ ਚੜ ਜੋ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੌਡ ਤੇ ਕੱਢੋ ਅਲੀਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫ ਦੇ ਦੇਣ। ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਊਅਰ ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ ਦੇਣ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। और नादर के मामले में एक बंदे को कहा जाता है कि तुनो, क्योंकि ये खुद तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। नहीं पहले इस गल दा हलफ दे लेंदे हो, कालू वाले मामले दा मैं हलफ देना इस दोनों हलफ लेना भाई, जो मैं बात कर रहा हूँ उस चीज का क्यों नहीं हलफ ले रहे आप? हाँ बिल्कुल उसका भी दिलाएं। इसने कहीं इस बंदे को कहीं हलफ दे, इसने ये बातें नहीं की और अब ये सती सवित्री बन के कहता है मैं पाक पवित्र सती सवित्र। अब वह खा के हज करने चली। हाँ वो आखिरी मैसेज मैंने डॉक्टर साहब को किया है, ये देखें मैं तो क्योंकि अदबन हर इंसान की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये मैंने इधर लिखा है, किधर लिखा है अभी मैं बताता हूँ आपको। ये मैसेज जो डॉक्टर साहब को मैंने किए हैं, चूहे वाला कहाँ गया यार, वो तो खैर मैंने डिलीट तो नहीं कर ली। डॉक्टर साहब ने हजूर दे घर च परवरिश पाई है। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਟਾ ਨਾ ਖੋਲੋ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਨਵਾਂ ਕਟਾ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਖੁਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? मैं शोएब राजा को कहना चाह रहा हूँ, तुम करके रहे जाओ यार। ਸ਼ਮਸ यार वो मिशल साहब शोएब राजा साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਓ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋएब राजा, ਕਿੰਨੇ शोएब राजा बैठे ने। अच्छा मौलवी साहब आए ने, कोई नहीं। अच्छा हादिया साहबा शेर पढ़ना चाहते ने अच्छा मुनाफिक पहले दे मौलवी उत्ते। साहब ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੌਲवी ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ मौलवी साहब ने नहीं करनी, मैं तां ही तो उन्होंने उस्ताद बना रहा उन्होंने नहीं करनी। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ चलो ਕਰਨਗੇ। मौलवी साहब करो जी गल, वेख ਅੱਜ लेने। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਨਗੇ। हाँ जी, मैं एवं नहीं उन्होंने उस्ताद मनया। ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ हाँ कर दो। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ 6 ਦਫਾ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਚੂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ। हाँ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਾਈਟਰ ਮੋਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, जी ਲੇਕਿਨ यही खूबसूरती है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਢਾ ਇੱਕ ਪੱਗ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਪ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬਰਾੜ ਲਗਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਲ ਗਈ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਦਾ 9 ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ठीक है, इस वास्ते अच्छा करें मौलवी साहब, बात करें आप। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 8 ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ 9 ਕੀ 16 ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਗੱਪ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੌਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ MBBS ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਮਿਸਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋएब ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਯਾਰ ਅਕਲ ਤੇ ਮਾਤਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੋएब ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਈ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਏ, ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੋएब ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਮ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੇ, मैं रिकॉर्डिंग तुसी मेनू कहोगे मैं तुहानू सुनावांगा कि ये 8 बंदों की वजह से हज़रत खलीफतुल मसीह और खामा सैयदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ को खुतबा देना पड़ा। वो तो अल्लाह ताला भला करे, राजा ताउल मनान साहब इहदे नाल बैठे से उन्हें कहा गल अमूमी करो, है तुसी की गल कर रहे हो? हाँ, मैं नाल पलसेटी मार गया इस सापर दमूए सापर ना पलसेटी मार गया। मुबशर रज़ा साहब मैं यही गल करन लगा था। एक तो कि तुसी कदी डॉक्टर कहंदे हो, कदी उत्ते पहला मैं सुन रहा था कि खुफिया एजेंट ने, ते कदी एजेंट बना दिंदे हो, कदी डॉक्टर बना दिंदे हो, तुहाडी मर्जी है। ते एक ओदा दिओ ना उन्हां नूं, हेलो कदी प्राइवेट सैक्टरी बना दिंदे हो। क्या मैं कुछ नहीं क्या, मैं तो कह रहा जाली डॉक्टर, जड़ा एक जाली डॉक्टर है, जड़ा MBBS भी नहीं है, एक किताब पढ़ी उन्हें इलाज बिल मिसल, एक अजीज होम्योपैथिक तो उन्हें बक्सा चुकिया तो डॉक्टर बन के बैठ। लेकिन मुबशर साहब किसी पोलचे ना रहना है, जमात दे ऐसे लोग मौजूद ने, ऐसा सेल इन मौजूद है, सबको इकट्ठा करके सोशल ना मीडिया एक आवाज ही का मुद्दा दिया जा सकता है मुनाफा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो तो सुन लो, गल तो सुन लो। साहब बैठे हैं बड़ी देर से, असद साहब सुन लो। आखिरी गल यार, नहीं 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 मैं तो मौलवी साहब मौलवी साहब यार मैं ते चला जाना। मौलवी साहब गल नहीं गल करो प्लीज यार, मौलवी साहब तो गल करन दे। दूसरी ये गल है कि खलीफतुल मसीह दा जो खुतबा सी ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਤਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਨੂੰ 7 ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ 5 ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ 4 ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾੜ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਗਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। जी असद साहब 100% एग्री विद दैट। अपना मिशन साहब असद भाई आए में बड़ी देर से, वो पहले भी ऐसे चले गए थे। जी असद साहब बोलिए सर, आप क्या कहना चाहते, पता तो लगे है कौन है? नहीं मैं अपना मौलवी साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨਵਰ ਅਯਦਹੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਨ ਨਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਾੜ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੀਮ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਲਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੀਮ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਚੰਦਾ, ਤੇ ਅਲੀਮ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ जी सैफी साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ। ਸੈਫੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਾਲੀ ਚੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ